students, welcome to my channel Remedy Maths Coaching. Today we are going to study class 10 sum of nth term of an arithmetic progression. Sum of AP. You know that terms of AP can be written as a plus d, a plus 2d and so on up to a plus n minus 1 into d, where this term is nth term, which is also known as last term. Okay. Now our aim is to find out the sum of these nth term. How to calculate? It's a very easy. Say Sn be the sum of these terms. Now we are writing a plus, remove comma and include addition symbol, a plus d, a plus 2d plus plus here will be last term L, and before last term here will be L minus d. Are you agree? Okay. Now we will reverse the series progression. Okay, writing last term first and here L minus d plus here L minus 2d dot plus, and our first term will be last term a, and here a plus d. This will be also Sn because nothing has changed. We just reverse the progression and adding them. Sum of these two progression, here 2 Sn, and we get a plus L. This d cancel, a plus L plus 2d cancel, a plus L plus dot here L plus a plus L. Up to nth term. Now इस n term को हम क्या लिख सकते हैं? We can write this n time a plus L. Okay, कैसे? For example, we have 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals to 10. If अगर हम प्लस को हटाना चाहें और इसे मल्टीपल में लिखें 1 2 3 4 5 इंटू 2, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं. तो जस्ट हमने n टर्म्स थे, हमने n टाइम a प्लस l कर लिया. ठीक है, प्लस को खत्म कर दिया. अब इधर से हमें क्या मिलेगा? 2 Sn, और Sn क्या होगा? डिवाइडिंग बाई 2 a प्लस l. दिस इज द सम ऑफ nth term of an AP, where L is last term, A is first term, and N is number of terms. This means if we know number of terms, first term and last terms, so we can calculate sum of nth term of arithmetic progression. अगर 3 unknown quantities हैं A, L, N, तो हम Sn कैलकुलेट कर सकते हैं. इस इक्वेशन को इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल कितना है? एल की जगह पे n टर्म्स होता है, तो हम इसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वेलेंट n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस वन इज सेकेंड फार्मूला फॉर Sn. In case you are not given last terms, you are given common difference, so apply this formula. If you are given first and last term, so first of all calculate nth terms and calculate the sum of. This formula can be written also as Sn equals to n a plus l by 2. A plus l by 2. This means this will be middle term. N into middle term. When यहाँ पर एक कंडीशन होगी, when n क्या हो? n ऑड हो. तो हम Sn को सम को 3 तरह से निकाल सकते हैं.
नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, और नंबर 3 नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें मिडिल टर्म में तो तब भी हमें सम मिल जाता है। लेकिन उसके साथ एक केस ये है कि n जो है ऑड होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई सिंपल क्वेश्चंस की। हैं, अगर सपोज कर लीजिए आपको Sn दिया हुआ है, आपको सम ऑफ nth टर्म दिया गया है और आपसे पूछा जाए फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा और nth टर्म क्या होगा, तब आप कैसे करेंगे? सपोज कर लीजिए आपको Sn दिया हुआ है, गिवन है, मान लीजिए n², आपको सिर्फ इतना दे दिया, सम ऑफ nth टर्म इज n², फाइंड फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एटसेट्रा। तो क्या करेंगे इसके लिए? आप जानते हैं कि Sn जो क्या होता है, Sn होता है सम ऑफ nth टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 डॉट, और लास्ट टर्म क्या होता है आपका? लास्ट टर्म आपका होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये आपका, इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं? an भी लिख सकते हैं, nth टर्म है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि पूरे का सम जो है Sn है, तो अगर यहां से हम एक टर्म्स को हटा दें, ये वाले टर्म्स को हटा दें, तो इतने टर्म का सम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा Sn-1। ठीक है, एक टर्म निकाल दिया उधर से, nth लास्ट वाला हमने निकाल दिया, जो कि क्या है? an को हटा दिया। तो अब ये बताइए कि हमें मिल के आ गया Sn बराबर Sn-1 प्लस an। ठीक है, तो अब हमें an अगर निकालना है nth टर्म यानी लास्ट टर्म, तो an बराबर हो जाएगा Sn-1। ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, in case of you are given sum of nth term, so you can calculate the nth term by this formula. Now question arises that how to find n-1 and how to find d. Now suppose we are taking S3, what will be S3? First term, second term and third term. This will be S3, है ना? S3 होगा। अगर हम 2 टर्म्स लें तो ये और ये 2 हो जाएंगे, ये आपका S2 हो जाएगा। और अगर हम एक ही टर्म लें तो आपका ये S1 हो जाएगा ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि S1 बराबर A हो जाएगा। ठीक है, S1 बराबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही टर्म का सम लेंगे विच इज फर्स्ट टर्म। और अगर हम S2 लेंगे तो 2 टर्म हमें लेना पड़ेगा, कौन कौन सा? a प्लस d। ठीक है, तो अब यहां से हम d फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो कि s की फॉर्म में होगा। देखिए d है तो d बराबर क्या हो जाएगा? S2 माइनस 2a। यहां से a प्लस a 2a इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से d बराबर क्या हो जाएगा? S2 माइनस 2, a को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? S1 से। तो ये आ गया d का फॉर्मूला। कब? जब आपको गिवन हो S2 जो है सम ऑफ nth टर्म s की फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएं, कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, फर्स्ट टर्म पूछा जाए, nth टर्म पूछा जाए, nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला। और जब इसमें आप n बराबर 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट हाउ टू फाइंड Sn-1। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, Sn तो दिया ही हुआ है, Sn-1 निकालना है। तो Sn-1 के लिए n की जगह पर n-1 रख देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ये हमारा Sn-1 हो गया। तो अब इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? बताइए, फॉर्मूला अभी लिखाया है, क्या होता है? Sn माइनस Sn-1। तो Sn आपका n² है और Sn-1 क्या है? n-1 का स्क्वायर है। तो यहां से क्या हो जाएगा? n² माइनस ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a² प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का n² माइनस का n² 0 हो जाएगा और यहां से मिलेगा 2n माइनस 1। तो ये आपका हो गया
nth टर्म 2n-1। अगर आपका Sn दिया हुआ है n स्क्वायर तो ये होगा 2n-1 इसका nth टर्म होगा। अब कॉमन डिफरेंस की बात करें, अगर कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, d बराबर अभी आपने कैलकुलेट किया S2 माइनस 2S1, ठीक है। तो S2 कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो S2 आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम S1 क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 हो गया और यहाँ से 2 हो गया, ये आपका D जो है 2 आ गया, D2 आ गया। अब आप फर्स्ट टर्म बता दीजिए, A1 बता दीजिए फर्स्ट टर्म, है ना। तो अब इसमें अगर आप रखेंगे n बराबर 1 तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, इसका मतलब 2 माइनस 1 और ये आपका फर्स्ट टर्म 1 आ गया। तो अब फाइनली आप सीरीज बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस 2, तो a प्लस 2 इसका मतलब 3 आएगा, प्लस 2 5 आएगा, प्लस 2 7 आएगा, प्लस 2 9 आएगा, प्लस 2 11 आएगा, प्लस 2 13 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये टर्म है, तो एक्चुअली हम इसे क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ n स्क्वायर इज सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, nth नेचुरल नंबर, कितने n नेचुरल नंबर के जो होंगे, देखिए ऑड में है ना 1 3 5 7 9 11 सब ऑड नंबर हैं, तो ये ऑड नंबर का n नेचुरल नंबर का सम है। अब एक फार्मूला हमने आपको और बताया कि अगर सम निकालना है, आपको कोई सीरीज दी है, 3 फार्मूले बताए मैंने आपको, एक तो मैंने बताया कि 1/2 a प्लस l होता है, दूसरा होता है n/2 टाइम ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है दूसरा मैंने आपको तीसरा फार्मूला बताया जो कि पहले ही फार्मूले से ड्राइव किया गया कि अगर आपको ऑड नंबर में टर्म्स दिए गए हों, ऑड नंबर में टर्म्स दिए गए हों और आपसे सम पूछा जाए और आप फार्मूला इन केस भूल गए हैं या आपको शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको समय नहीं है इतना कैलकुलेट करने के लिए, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ टर्म्स Sn क्या होता है। अब चलिए हम इस सीरीज का Sn निकालते हैं, ये हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। तो अगर हम इसका सम निकालें इन सातों टर्म्स का, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। और मिडिल टर्म क्या है इसका, देखिए मिडिल टर्म आपका 7 है, 3 इधर से गया 3 इधर से गया, तो मिडिल टर्म 7 है। तो इसका Sn क्या हो जाएगा, Sn 7 टर्म है, ये देखिए 7 टर्म का सम क्या होगा 7 इंटू मिडिल टर्म, तो ये आपका 49 आ गया, ऐसे 7। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 सम ऑफ 7 ऑड नेचुरल नंबर विल बी 49। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है सम ऑफ nth नंबर पे है। ये हमारा पहला वीडियो था, मैं इस पर आपको और वीडियो दूंगा। कीप वॉचिंग, मिलते हैं 2 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।